بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تعلیمات اچھی دیکھ کر کے شاید وہ بھی نبی ہو سکتے ہیں، گوتم بدھ بھی نبی ہو سکتا ہے، رام کرشن کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے کلام کر دیا۔ ہاں، یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو رام کرشن کے بھکت ہیں، بلکہ میں بعض مسلمان اسکالر کہے جانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، ان لوگوں کو تحقیق کا بڑا شوق ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسے کہ ہمیں اور آپ سب کو معلوم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے، اور سب سے آخر نبی ہمارے اور آقا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس بات پر ہم سبھی مسلمان کا ایمان ہے، الحمدللہ۔ لیکن کچھ نان مسلم میں ایسے بھی دھرم کا ٹھیکیدار ہے جو کسی کا تعلیمات دیکھ کر کے یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ بھی نبی ہے، معاذ اللہ۔ لیکن دوستو، وہ لوگ تو نا علمی کی بنیاد پہ کہہ دیتا ہے۔ شرم اور افسوس کی بات تو یہ ہے دوستو کہ اپنے آپ کو کچھ لوگ مسلمان کہلانے والا مولانا اس بات کو ثابت بھی کرتے ہیں اور دلیل بھی دیتے ہیں۔ آئیے اس بات میں کتنی سچائی ہے ہم اور آپ جان لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے، تو آئیے محبت کے ساتھ اس ویڈیو کو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تعلیمات اچھی دیکھ کر کے شاید وہ بھی نبی ہو سکتے ہیں، گوتم بدھ بھی نبی ہو سکتا ہے، رام کرشن کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے کلام کر دیا۔ ہاں، یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو رام کرشن کے بھکت ہیں، بلکہ میں بعض مسلمان اسکالر کہے جانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، ان لوگوں کو تحقیق کا بڑا شوق ہے تو تحقیق میں کچھ بھی لٹ مار دیں گے۔ گوتم بدھ نبی ہیں، نبی ہو سکتے ہیں، یہ کچھ لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا۔ دلیل میں یہ کہتے ہیں ان کی تعلیمات بھی جو ہیں وہ دوسرے نبیوں کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہیں۔ تصوف کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ ان کی تعلیمات میں بھی ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے زمانے کے نبی رہے ہوں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، آپ کو فارمولہ بتایا، اس پر ہمیشہ چلیے۔ آپ کسی کو بھی نام کے ساتھ نبی کہنے کے لیے ان کا نام قرآن میں یا حدیث میں آیا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں ان کا نام نہیں آیا تو چاہے اس کی تعلیمات سب سے اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، نبی ہم نہیں کہہ سکتے۔ کسی غیر نبی کو، نبی نہیں تھا اور آپ نے اس کو نبی کہا، کافر ہو جائے گا۔ اور کوئی نبی ہیں ان کی نبوت کا انکار کیا تب بھی کافر ہو گئے۔ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی آئے، کہاں سے شروع ہوئے کہاں پہ ختم ہوئے، یہ بھی ماننا ضروری ہے آپ کو۔ اسلامی عقیدہ، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں چیزیں بھی ماننا آپ کو ضروری ہے۔ قرآن پاک جب مکمل ترتیب دے دیا گیا نا، مکمل ترتیب دے دیا گیا، کور لگا دیے گئے قرآن، اور حضرت عثمان غنی نے فرمایا اب قرآن وہی ہے جو ان دو رٹ کے بیچ میں ہے، اس میں کوئی ایک ورق زیادہ بھی نہیں کرے گا اور ایک ورق اس میں سے نکالے گا بھی نہیں، سب گنا جا چکا ہے۔ آدم علیہ السلام ابتدائے انبیاء اکرام میں پہلے نبی ہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ دونوں اول و آخر کا ماننا بہت ضروری ہے۔ ان میں ایک نبی کو بھی ہٹایا تو بہت سارے ظالم دوسروں کو لا کر اندر داخل کریں گے۔ سارے نبیوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عقیدے الگ ہیں، خاص ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، افضل الرسل بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں۔ یہ سب ماننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اور سب سے مضبوط چیز یہ ماننا ضروری ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا میرے آقا کے بعد، حدیث میں اس کو دجال کہا گیا ہے، وہ دجال ہے۔
दज्जाल किसे कहते हैं? सबसे बड़ा झूठा। वो जो बड़ा दज्जाल आएगा वो बाद में आएगा, लेकिन जो नबूवत का दावा करते हैं वो भी दज्जाल है। बात समझ में आ रही? यह अकीदा बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसलिए इसको लेकर के चले आप। गैर नबी को आप नबी कह नहीं सकते। पहले की उम्मतों में कुछ चीजें हलाल थी, बाद में हराम हुई। जैसे आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत, उनकी औलाद थी, भाई बहन का निकाह जायज था, इसलिए कि इंसान थे ही नहीं, जो थे उन्हीं की औलाद थी। तो अब नस्ल को बढ़ाया कैसे जाएगा? उन्हीं की औलाद में आज जो पैदा होता लड़का और कल जो पैदा होती लड़की, यानी हजरत हव्वा को रोजाना एक लड़का और एक लड़की पैदा होती। ये नस्ल इंसानी की इब्तिदा थी, ऐसे नहीं कि 9 महीने के बाद पैदा हो। तो उनकी शरीयत थी आदम अलैहिस्सलाम की, और उस शरीयत में जायज था भाई बहन का निकाह। लेकिन उसके बाद जब नस्ल इंसानी बढ़ गई तो फिर ये मनसूख हो गया, हुक्म खत्म। आपने कुरान में सुना भी है सूरह यूसुफ की तफसील में कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके 11 भाइयों ने और अजीज़ मिस्र ने और उनके वालिद ने सजदा किया। तो ये सजदा क्या था? उनकी शरीयत में ताज़ीम का सजदा जायज़ था, ताज़ीम के लिए। लेकिन बाद में शरीयत मुहम्मदी में ये सजदा भी हराम करार दिया। सजदे ताज़ीम भी हमारी शरीयत में जायज़ नहीं, चाहे वो हुजूर के लिए हो, किसी और नबी के लिए हो, या किसी वली के लिए हो, या किसी की कब्र के लिए हो, किसी के लिए भी जायज़ नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारे सजदे ख़त्म फरमाए सिवाय रब्बे जुल जलाल के सजदे के। अल्लाह का सजदा बस, उसके अलावा किसी के लिए सजदा जायज़ नहीं। अंबिया इकराम की शरीयतों में बदलाव होता रहा, किताबें बदलती रहीं, लेकिन अकीदा सबका एक ही था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो अकीदा हमारा है, यह अकीदा सबका एक ही है। ये कितने नबी आए, इनकी सही तादाद तो अल्लाह उसके रसूल को ही मालूम है। लेकिन कुछ हदीसों में एक फिगर मिलता है। एक रिवायत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस में मिलता है 1,24,000, और एक रिवायत में 2,24,000। तो अलग अलग रिवायतें आई हैं, सहाबा ने जो रिवायत किया। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया, उलमा ने फरमाया कि सही तादाद तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन कभी अगर कहना हुआ तो यूं कहें 1,24,000 कम व बेश, कम भी हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सब पर हमारा ईमान है। लेकिन यहाँ एक अकीदा सुनते जाइए, अल्लाह का नबी आप किसको कहेंगे? किसी को भी अल्लाह का नबी कहने के लिए नाम के साथ आपको कुरान में उसका नाम होना चाहिए या रसूल पाक से सुना हुआ होना चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाम के साथ नबी हम जानते हैं कि क्योंकि उनका नाम कुरान में भी आया है और हुजूर की जुबान पर भी आया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये अंबिया वो हैं जिनके नाम कुरान में आए और अहादीस में भी आए। 26 नबियों के नाम कुरान पाक में आए, और कुछ इनके अलावा अहादीस में नाम आए हैं। कुल मिलाकर के अगर 40 नाम हैं तो बाकी 1,24,000 कहाँ हैं? तो उनके बारे में आपको मिन जुमला अकीदा रखना होगा। इतने आए थे लेकिन हर एक का नाम हमें मालूम नहीं। जितने नाम हुजूर ने बताए उतने नामों के साथ हमें नबी मानना फर्ज है। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है, बाज लोग ये कहते हैं कि किसी की तालीमात अच्छी देख करके शायद वो भी नबी हो सकते हैं। गौतम बुद्ध भी नबी हो सकता है। राम कृष्ण के बारे में भी कुछ लोगों ने कलाम कर दिया। हाँ, ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो राम कृष्ण के भक्त हैं, बल्कि मैं बाज मुसलमान स्कॉलर कहे जाने वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ, उन लोगों को तहकीक का बड़ा शौक है तो तहकीक में कुछ भी लट मार देंगे। क्यों मियाँ? गौतम बुद्ध नबी हैं, ये कुछ लोगों ने ये शोशा छोड़ा। दलील में ये कहते हैं उनकी तालीमात भी जो हैं वो दूसरे नबियों की तालीमात से मिलती जुलती हैं। अखलाक की तालीम है, अच्छाई की तालीम है, तसव्वुफ के जितने भी मराहिल हैं वो उनकी तालीमात में भी मिलते हैं। हो सकता है वो अपने ज़माने के नबी रहे हो। एक बात याद रख लें, मैंने जो आपको फार्मूला बताया इस पर हमेशा चलिए आप
किसी को भी नाम के साथ नबी कहने के लिए उनका नाम कुरान में या हदीस में आया हुआ होना जरूरी है। अगर कुरान और हदीस में उनका नाम नहीं आया तो चाहे उसकी तालीमात सबसे आला ही क्यों ना हो, नबी हम नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। और अगर गैर नबी को आपने नबी मान लिया, काफिर हो जाओ, माज़अल्लाह। किसी गैर नबी को, नबी नहीं था और आपने उसको नबी कहा, काफिर हो जाए। और कोई नबी है, उनकी नबूवत का इनकार किया, तब भी काफिर हो जाए। बात समझ में आ रही? यह अकीदा बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसलिए इसको लेकर के चले आप। गैर नबी को आप नबी कह नहीं सकते। मुअज्जज़ सामीने इकराम, तो हम लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया कराम इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है, और तमाम नबियों पे हमें और आपको ईमान लाना फर्ज है। और उन लोगों को नबी नहीं मानना है जिनका जिक्र न कुरान में आया है, न हदीस पाक में आया है, न हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कुछ जिक्र किया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इन तमाम बातों से हम और आप बचेंगे। हमारे और आपके अंदर सबसे बड़ा कमी यही पाया जाता है दोस्तों कि हम लोग कुछ सीखते नहीं हैं और किसी के भी बात को सुनकर उस पे अमल करना शुरू कर देते हैं। हमें और आपको चाहिए कि कुछ ना कुछ इल्म सीख ले, इतना इल्म सीख ले कि हराम और हलाल की फर्क करने आ जाए। आइए एक छोटी सी हदीस हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इरशाद फरमाइए। आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म सीखना हर बंदाए मोमिन पे फर्ज है, चाहे वो औरत हो या मर्द। अगर इल्म नहीं सीखेंगे तो हम और आप जान लीजिए कि गुनहगार हैं। अगर इल्म नहीं होगा तो इसी तरह का अनसुनी बात को मान लेंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट प्यारा सा बताइए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह का वीडियो लेकर के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।